day one. Lots has happened, lots to talk about. We've got our experts with us, but उससे पहले हम बात करेंगे काफी चेंजेस हुई है इस मैच से पहले. थोड़ी अब्रप्ट चेंजेस हुई हैं, सिलेक्शन कमेटी में हुई है, टीम में हुई है, पिच पे हुई है, गेम में हुई है. अब देखते हैं आगे कि क्या ये हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज साबित होगी या अनफॉर्चुनेटली फिर हम एक ऐसे सिचुएशन में आ जाएंगे एज अ टीम, एज अ पार्ट ऑफ द मैच कि हम वहां से निकलना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा. सो विल टॉक अबाउट दिस. I've got with me Shahzad. Shahzad, welcome back from the break. Thank you so much. Let's continue the discussion. Yeah, let's continue the discussion. Obviously, दूसरे टेस्ट का पहला रोज और मुल्तान में जिस किस्म की अब विकेट तैयार हुई है, आई थिंक हो सकता है कि पाकिस्तान यहाँ से अपने लिए फेवरेबल डिसीजन जरूर निकाल सके. लेकिन फॉर अस टू काइंड ऑफ से एनीथिंग, उससे बेहतर है कि हम एक्सपर्ट की तरफ जाएं ताकि कल को हमें कोई ये ना कि भाई आप क्यों मशवरे दे रहे हैं. हम मशवरे नहीं दे रहे, हमारा काम सवाल पूछ रहे हैं और हम सवाल पूछेंगे. जी सर, हाउ डू यू सी पाकिस्तान टुडे? टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया, आपने कहा था बॉलिंग करनी चाहिए, क्यों? सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं. आखिरी बॉलिंग करनी चाहिए. आखिरी बॉलिंग करनी, बिल्कुल वो कर लेंगे उन्हें. ठीक है, मिल जाएगी. अब यहाँ से आगे क्या? बहुत गंदा विकेट बनाया. ठीक है. This is not the way you should play Test cricket on these sort of tracks. I think it's kind of embarrassing towards Test cricket. I'll be very honest with you. यहाँ पे बॉल ना उठ रहा है ना जा रहा है. पहले दिन यार बॉल किसियाँ कर रहे हैं यार. For God's sake यार. I mean there is no bounce, there is nothing. There is a reverse swing. Obviously I get that. You're making that kind of a track for your advantages, yeah, but be fair about the game. Exactly. And to the opponent. Yeah. They're laughing. वो भी खेलने नहीं आए ने. But they're laughing. What are you guys doing? ऐसे जीत लो. But the good thing comes out of this whole test match, Kamran Ghulam. True. Absolutely. I mean like justify किया उसने अपनी पहले दिन में fresh wicket के ऊपर. मुझे लगता है दूसरी इनिंग्स में गंदे ट्रैक के ऊपर इधर इतना अच्छा खेल जाए तो फिर तो क्या ही बात है. पहले दिन अच्छा फ्रेश ट्रैक मिला, उसमें उन्होंने मेरा लूट लिया और जस्टिफाई कर दिया. चलो जी, सेंचुरियंस फर्स्ट टेस्ट मैच में डेब्यूट ऑन, और क्या चाहिए. तो गुड थिंग अबाउट इट, बट आई एम हाईली disappointed with the result of the wickets. The pitch they have prepared, I think there's no way you should play Test cricket on these sort of tracks. It's very embarrassing. Let's have a look at the batting card. Let's see how we performed today. So we've got the batting card with us. Abdullah with 7 of 28, followed by Saim Ayub 77 of 160. Shan Masood, the captain, just 3 runs off 7 balls. Then Kamran, of course, with 118 of 224 balls. Saud with 4 of 14. Rizwan, he's still on the crease with Salman. Rizwan has got 37 and Salman is at 5. So at the end of the day, with having played 90 overs, we're at 259 for 5. अब देखते हैं जी bowling card हमारा. जी शहजाद. All right, moving on to the bowling card. Obviously, it was Potts was the actually blue-eyed boy today, who actually made sure he was going to create a lot of difficulty. Imagine, look at the number of the maiden overs that he has bowled today. Economy at 2.12. It was cast with obviously 11 overs, giving away only 14 runs. Then Leach actually was the one person who actually got them those wickets which they needed early on. There was Shobbishi with Kamran Ghulam's wicket, and Stokes truly wanted to get a wicket, but the way that Stokes have actually captained and the way that he captained is something which is phenomenal for all of us as well. Moving on to Shoaib, let's get back to the batting card and then move on to the bowling card as well. Saim with 77, Kamran Ghulam, obviously debutant century, आपने उसके ऊपर बात कर दी. आपको क्या लगता है कि ऊपर अब जब हम पिच की ऐसी कंडीशंस में अब्दुल्ला और शान को देखते हैं जो अनफॉर्चुनेटली परफॉर्म कर पाए, सऊद को देखते हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाए, पिछली विकेट के मुकाबले में इस विकेट पे हमारे प्लेयर्स मिजरेबली फेल हो रहे हैं. What do you take of it? I think Saim played really well. I think on fresh wicket था, इतना खराब नहीं था, deteriorate नहीं था, लेकिन there was a very uneven bounce. Yeah. And yet he played very maturely. True. I think this credit goes to Saim in terms of बच्चा है और settle in हो रहा है patience के साथ. So I think this is a very good thing that I see as an investment in Saim Ayub, that he is doing well. और अच्छा खेला, according to the merit खेला. The merit was very important for me. वो going haywire kind of thing जो होती है Test T20 वो नहीं किया उसने. Playing a cricketing shots we talk about. Playing a test cricketing shot. That what I was good to see that. बहुत चीज भी है, जैसे ही हम फील्ड प्लेसमेंट देख रहे हैं इसमें साइम और कामरान का आना, जबकि हम 2 विकेट्स डाउन है, और फिर उसके बाद स्कोर करना और कॉन्स्टेंटली माइंडफुल रहना कि यार हमने इस कंडीशन से पाकिस्तान को बाहर निकालना है. आई थिंक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो साइम ने आज फुलफिल किया, आई थिंक ओज हिम अ लॉट ऑफ क्रेडिट. ऑफ कोर्स यार. And
England were trying their best to trap both Saim and Kamran with their field placement, with the way they were bowling at them. But वो mindful cricket खेल रहे थे, and they were trying to counter that. So this was, like you said, it was mature from Saim. It was good to see Saim, and also एक और चीज, पहले टेस्ट के बाद उनको अब यहाँ खिलाना, you can see that level of maturity. So I think it's very important कि जब आप एक टेस्ट मैच खेलते हैं, उसके बाद जब आप सेकंड में इंप्रूव करते हैं, so that is what counts. That's what we like to see as an investment. जी. तो इन्वेस्टमेंट ये बहुत अच्छी थी आपकी, और आपने साइम ने प्रूव भी कर दिया. और देखिए विकेट्स जो होती है ना, दे मेक्स द प्लेयर एट द सेम टाइम. यहीं साइम को अगर हम ऑस्ट्रेलिया में खिला देते तो भी कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है. लेकिन अगेन फिर भी अनइवन बाउंस के साथ ही शोड अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी व्हेन इट कम्स टू taking the responsibility and yet at the same time scoring runs. True. That is very important. Right. उनका scoring rate 2 के उनके हिसाब से बहुत कम है. अगर वो देखा जाए तो उन्होंने कितना किया है, मेरे ख्याल 97 बॉल्स पे 50 की थी मेरे ख्याल में उन्होंने. 48 का स्ट्राइक रेट है. 48 का, but it is still not bad. So he is being mindful in terms of यार I need to score runs at the same times. True. So that kind of a player that who has a stroke making ability and plus he knows कि यार थोड़ा सा मुझे जो थॉरोब्रेड जो हॉर्स है उसको थोड़ा सा अपना रेंज को खींच के रखना है, ताकि मैं बच्चा है ना, एक्साइटमेंट में बाहर निकल जाती हैं. तो आई थिंक बड़ा मैच्योरली खेला. एग्जैक्टली. मैं जो शेख भाई ने बात की, इसको मजीद सेकंड भी इसलिए करूंगा क्योंकि टेस्ट क्रिकेट लेडीज एंड जेंटलमैन इज ट्रूली द टेस्ट ऑफ योर मेंटल अवेयरनेस एंड गेम अवेयरनेस एज वेल. While we are at it, I think I would love to kind of pay credit and rich tribute to the guy who's actually done a tremendous job as well. But not just that. In addition to this, I would love to kind of come back to Kamran Ghulam now. जहाँ पे शोएब भाई ने थोड़ा सा अर्ली ऑन तस्करा भी किया, और वो मैं ये बात यहाँ पर ज़रूर करना चाहता हूँ कि 13वें पाकिस्तानी ऐसे टेस्ट क्रिकेटर हैं जिन्होंने डेब्यू में जो है वो 100 किया, टेस्ट डेब्यू में 100 किया. उसमें बड़े बड़े नाम हैं, जावेद मियाँदाद हैं, फवाद आलम हैं, यूनुस खान हैं, यासिर हमीद हैं, अजहर महमूद हैं, एंड फाइनली कमरान गुलाम जॉइंस द लिस्ट एज वेल. उनकी फैमिली ने, उन्होंने जितना सब्र किया, शोएब भाई इस बात के गवाह हैं. पिछले 3-4 साल से डोमेस्टिक सर्किट की में जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेस थी, वो टॉप स्कोरर रहे. कमरान गुलाम के हवाले से बहुत बात हुई, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपना और अपनी फैमिली का और पूरे पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया है. लेट्स टेक अ गुड लुक एट द वे दैट ही इज प्लेड. आप फील्ड सेटअप देखें और उसके बाद सेंचुरी स्कोर करना देखें. जी शोएब भाई. शहजाद, दिस इज आल्सो सॉरी, दिस इज नॉट एन इजी ट्रैक टू बैट ऑन. ट्रू. उसके बावजूद Kamran had big shoes to fill the way he's been brought in. जिस टाइम पे he literally walked into a storm, but he proved himself. He proved himself with his awareness. उनको पता था field placement कहाँ है. He took full advantage of that. At the same time, even when Rizwan walked in, he's a senior player, but Kamran gave him that confidence where Rizwan took his time, but Kamran was playing his own innings at the end. माहिन, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिवटल बात है वो ये है कि ये डेब्यू की जो सेंचुरी उनकी वो बांग्लादेश या श्रीलंका के खिलाफ नहीं है, ये इंग्लैंड के खिलाफ है, जो भी पहला टेस्ट मैच आपसे जीत चुके हैं. आपको एक पैनिक बटन प्रेस करके बाबर को बिठा के खिलाया जाता है उसकी जगह पे, और आप साबित कर देते हैं कि आपको ठीक खिलाया गया. और अगर इन कंडीशंस के आप इतने तगड़े प्लेयर हैं तो आप ये सोचें कि बैटिंग ट्रैक के ऊपर कामरान गुलाम खेलेंगे तो शायद हैरी ब्रूक नहीं, कामरान गुलाम भी ट्रिपल सेंचुरी कर लेते. जो शोएब भाई अब ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हम थोड़ी सी देर में शोएब भाई से भी जरूर पूछेंगे. बट स्ट्रॉन्गर 4 आर्म्स, रिवर्स को भी बड़े अच्छे से हैंडल किया, मेड श्योर दैट हिज स्टांस स्टेज इंटैक्ट. हमेशा बड़े माइंडफुल रहे. फील्ड खुलवाई इन्होंने, टी के बाद इन्होंने फील्ड खुलवाई, बिकॉज देन ही वेंट फॉर कि मुझे यार चौके लगाने चाहिए, मुझे रन्स बनाने चाहिए. फिर वहाँ पे स्टोक्स ने फोकस किया कि यार हम फील्ड थोड़ी सी ओपन करते हैं, ये स्कोर ज़्यादा करना शुरू कर दिया. आई थिंक यही एक खिलाड़ी की जीत होती है, और वो स्कोर पे स्कोर करते चले जा रहे हैं. ही कीप्स दैट बोर्ड टिकिंग. आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल टू सी. ये वो मौका था जहाँ पे उन्होंने कहा कि अब हम स्कोर करते हैं टी के बाद, फिर ठीक है वो फील्ड खुद बैक ऑफ करेंगे, और आप देखें आगे वो बैक ऑफ होती हुई आपको नजर आई है. Look at the way he's made his century. What a shot to make your century on. And he waited for it. दूसरी तरफ रिजवान मौजूद थे. He was taking a lot of deliveries to settle in, but he didn't lose his calm. He stayed well. He stayed really intact. He was very mindful. Azhar bhai over there, Azhar bhai, we miss you, from the studios over here as well. Yeah, he himself actually made a century in his test debut. Wow, everybody's clapping about it. Ji Shoaib bhai. I witnessed that. अज्जू की सेंचुरी. Really? हाँ, अजहर जो सेंचुरी बनाई, पर वो उसकी जो अगली सारी सेंचुरी थी मेरे साथ ही थी. अगली जो उसने 2 बनाई थी मैं उसके साथ ही खेल रहा था. I mean, Ajju was a great talent. I mean, when it comes to
participating for Pakistan team. Exactly. I think अजहर का बहुत रोल है, स्पेशली अजहर का बहुत रोल होगा, आकिब का भी और बाकी सेलेक्टर्स का भी, to give him a chance. और स्पेशली आई थिंक क्रेडिट गोज टू आकिब जावेद इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज कामरान गुलाम को रखना है, खिलाना है, Right. और ड्रॉप भी करना है. तो आई थिंक दिस इज द ओनली वन गाय हु कैन डू इट इज आकिब जावेद. Exactly. एंड Kamran Ghulam actually went out there and to prove कि देखे पख्तून जो होता है ना वो दिमाग से नहीं सोचता, वो दिल से सोचता है. मारना है हमने, तो बस ठीक है. उसने जाकर अपने गेम को उसने शोकेस किया, और उसने अपने एटीट्यूड को, अपने गेम को शोकेस करके दिखाया कि यार दिस इज द काइंड ऑफ माइंडसेट दैट आई एम गोना कम इन विद. सो दिस इज द ग्रेटेस्ट, आई थिंक द एटीट्यूड that could any race has is the Pashtun, is that you don't care. ये बॉल सामने टक करके उसने 98 पे क्या किया. That goes to shows कि पहले बंदे का पहला टेस्ट मैच है, उसने कहा यार मुझे कोई परवाह नहीं है, मैंने चक्का मारना है, चक्का. वो चक्के वाले जो माइंडसेट है, बात तो सारा मिना कुम दे. हाँ, but the thing is again that he is also aware of his role. Yes. That is very, very heartening to see. True. For me, that somebody who understands the game and ticking the scoreboard at the same time. Absolutely. And मुझे ये नहीं था यार कि चलो ठीक है वो पहला टेस्ट मैच है, उसको हम 200 बॉलें भी दे देते तो जस्टिफाई होता. But he made sure कि मैं अपना जो डेफिसिट है उसको पूरा कर लेता हूँ. So I think it's a great day for his family. Debutant, सारी मेहनत का निचोड़ आज का दिन था, निकल आया. Hats off to him. He totally deserves it. मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ यार कि कुछ लोग बात कर जाते हैं ना, जिनको अल्लाह ने दिया होता है उनके बारे में बात कर जाते हैं. मैंने कहा यार बात सुनो, जिसको अल्लाह ने दिया है ना उसको ना छेड़ो. तुम नहीं समझते कि अल्लाह ने उसको किस वजह से दिया हुआ, वो एक खास बंदा है. और तुम आम लोग हो, तुम आम लोग खास बंदे के बारे में बात कर जाते, नॉट नोइंग द फैक्ट कि ही इज द चोजन वन. और वो चोजन वन है भाईजान, उसने बाबर को रिप्लेस किया, उन्होंने डेब्यूट पे बाबर को रिप्लेस किया आजकल के दौर में. हाँ, लेकिन उसको निकालना ज्यादती थी बाबर को. जी ठीक है, वो पॉइंट टेकन. हाँ. समझ रहे, पॉइंट टेकन. ठहर तो जाओ ना, ठीक तो आप ले नहीं, गलत किया है, जुल्म है यार, इस तरह नहीं करते. आपने किसी को अगर सबक भी सिखाना है तो ठीक है, दिस इज नॉट द वे टू टीच लेसन्स. आई अंडरस्टैंड देयर इज many things goes wrongs with him when it comes to captaincy, grouping, plant and count, being everything, being selfish, not being a match winner, anything. I don't know whatever the people says about him. तो मैं इतना डीपली तो मैं नहीं देखा उसको मैंने कभी. तो मैं कितना ख्याल, आप अब ये मैचेस देखता हूँ, मैं पहले तो इतनी पाकिस्तान क्रिकेट फॉलो ही नहीं करता, लेकिन बट जिस तरह आपने ज्यादती करके उसको निकाला, दिस इज नॉट राइट. हाँ, 2 टेस्ट मैच के बाद निकालते हैं आप, ठीक है यार, नहीं हुआ रन, ठीक है, आप रेस्ट करें, आप जाके फर्स्ट क्लास खेलें, ठीक है. नाउ द ओनली ऑप्शन दैट ही हैज लेफ्ट बिहाइंड विद इज द बैट. दिस इज गोना बी अ वेरी रफ राइड फॉर यू. बाबर आजम के लिए कह रहा है, गोना बी वेरी रफ राइड. देयर इज नो chairman who's just gonna love you, like you, give you the utmost power. Now you have to just go out there. You have to save your place in the one days. A. Secondly, you're not going to be playing on your number that you want. Two. Yes. Thirdly, that you have to finish games. 3. What you're made off with, you got to show us. And that is going to be life for Babar Azam in next year or so. Exactly. If he doesn't perform, trust me, the pressure is going to mount on him. That's how it looks like. शुएब भाई, लेकिन इसको just to wrap it up, अगर फर्ज करें जैसा आपने कहा, ऑब्वियसली जिस तरह के वो सुप्रीम प्लेयर है, प्रीमियम प्लेयर है फॉर पाकिस्तान, बड़ा पाकिस्तान को रोशन किया है. मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर बाबर को हम ये पूरी सीरीज खिलाते, कामरान को मौका ना मिलते और हमें सीरीज कॉस्ट कर जाती, अभी हम जिस पोजीशन पे खड़े हैं मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूं. Agreed. कामरान तो वैसे भी किसी जगह आ सकता था. हाँ, और तो किसी जगह नहीं आ सकता. Can't यार drop your top notch player for heaven's sake. You can't do that. Just not right. बॉस ये पहली दफा तो नहीं हुआ. नहीं, what has ड्रॉप हुए इसी तरह. विराट कोहली क्यों 2 साल 3 साल ड्रॉप किया? हाँ, उन्होंने कप्तानी से हटाया, उसके बाद उन्होंने कहा टीम से ड्रॉप किया. नहीं, टीम से नहीं ड्रॉप किया. तो इनको कप्तानी से हटाया? नहीं, टीम से कप्तानी से हटाया ना. कप्तानी से हटाया. तो फिर मैं टीम से भी निकाल दिया. भाई अब यार आप समझते, सिविलिटी आप नहीं समझ रहे बारे मेरे ख्याल में, है ना. मैं चाहता हूं ना आप बाबर आजम को किकिंग हिम आउट ऑफ द साइड. That's not right. During the series, who does that? वो कह रही रेस्ट की जरूरत थी.
उनको रेस्ट करा रहे हैं, हम Did you शाहिद को ask भी him? रेस्ट करा रहे हैं, नसीम को भी। Did he say that he needs rest? वो तो बेचारे के So फखर ने कहा apparently he शो said पोस्ट that मिल he गया। does not need rest and he was told that no, हम आपको नहीं खिलाएंगे because apparently के आपकी फॉर्म अच्छी नहीं है. He was asked to step out and he was removed from the They squad. He dropped was him. sent home. They dropped him. That is fine with me. It's okay. But look, I understand the frustration of the management. I get that. I'm all for the management. I'm not saying that, but I'm just saying that, yeah. After all, he is, whatever you so called, is a brand of Pakistan, right? Yes. Is that what people say, na? So Yeah. theek hai, I get that. But there's no way of kicking somebody out of this during the series, yaar. You're asking like Shoaib Akhtar, आप एक टेस्ट मैच आउट नहीं किए, सॉरी आपने 5 टेस्ट मैचेस में रन्स नहीं आउट नहीं किए, इस टेस्ट मैच में ड्यूरिंग द सीरीज हम आपको बाहर निकालते हैं, थैंक यू वेरी मच, प्लीज गो होम। नहीं लेकिन देखिए No, शोएब hold भाई, on. उन्होंने पहले टेस्ट का अलग स्क्वाड अनाउंस किया, उसके बाद दूसरे का अलग स्क्वाड अनाउंस किया, फिर प्लेइंग 11 I अनाउंस किया। get that. Yeah. You're talking about Babar. Yeah. You're insulting him. Okay. You insulted in front of English media too. You insulted in front of everybody. You know, news went out so far. So then why are they doing it? Why are they doing The it? thing with is, Babar? they are angry at him. I understand that. Management is not happy with him. क्या आज अगर So the पाकिस्तान की PCB क्रिकेट is not इस happy बोर्ड with पे खड़ी him. है So Zakir Javed says, listen, whoever you are, get out. बाहर, This is what happened. I'm telling you right now. बिल्कुल। नजर आ रहा है। This is what happened. आकिब ने मैनेजमेंट ने कहा थैंक यू वेरी मच। आप ये कहते हैं आकिब भाई का ये फैसला गलत है, सिलेक्शन कमेटी का ये फैसला मेरा गलत है। ख्याल है तरीका गलत है, तरीका गलत है। फैसला गलत नहीं है, ठीक है, तरीका गलत है। आगे बढ़ते ठीक है, हैं। आप निकालें, आपकी Yes, डिस्क्रिप्शन है, आप करो। yes, बिल्कुल। मैं एम ऑल फॉर इट यार। देखो ना, हमारे भी टीवी में बॉसेस है, ठीक है यार, यू नॉट गुड इनफ, थैंक यू वेरी मच, बट नॉट ड्यूरिंग द प्रोग्राम ना। Not क्या आप उठ के during the चले जाए, program. एक ने किया था ना, वो 3 साल से आया ही नहीं। They've set a very Sorry. wrong example by doing this and in front of the whole world. Like we said, we've spoken a lot about it. This is not the way to do it. It could have been done in a much better, in an organized way, not this way. Well, exactly. So you shouldn't kill your own brand like this. और- I mean, like that is not और right. जो for शोएब me. भाई ने बात की, अगर उसी को आपने और सेकंड दूसरा करना है, यार, what kind of pitches that you're preparing? I mean, I don't get that. I mean, I played counter cricket for a number of years. I know the Englishmen's. एक चीज निकाल के रखी हुई आपके लिए। अब देख लो, 56वां क्या ओवर है, जरा आए, ये मैं आपको दिखा देता हूं, we've made I mean, pitches like, this time. this is no way of playing Test cricket, yaar. I mean, like, this is disappointing. I'll be very honest with you. Spinning track, I get that. But slow and low, and there is no pace, no nothing. I mean, I'm speechless. Where we spoke about Kamran Ghulam's debut, you know, the way he walked in today, जिस तरह उनका वो body language थी, हम पिछले 2-2.5 साल से अपने मिडिल ऑर्डर में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। सो एक ये आर्ग्यूमेंट आती है कि जी जब बांग्लादेश के स्क्वाड में ये थे, इनको क्यों नहीं खिलाया गया, क्या उनकी जगह नहीं बन रही थी? मिडिल ऑर्डर में हमारे पास अभी भी कमजोरियां हैं Selection committee में आके इंटेंशन उम्मीद है। जी। मिडिल ऑर्डर को स्टेबलाइज करने की इंटेंशन ही नहीं थी। मैं खुद खेलता रहा हूं, आज आ गया ना, कारमा हो गया ना। आप कुदरत के साथ ज्यादा क्या निजाम के साथ, कुदरत का एक सिस्टम है, उससे कितनी छेड़छाड़ी कर लोगे। आज देख लो, सामने आ गया। मिडिल ऑर्डर सेटल क्यों नहीं होने दिया? यही तो मैं पिछले को 20 साल से मैं कहता आ रहा हूँ, स्टेबलाइज ही नहीं होने देते थे मिडिल ऑर्डर को। ये आज की बात नहीं है, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। Right. स्टेबलाइज होने नहीं देते थे, वो ओपनर आने नहीं देते थे, मिडिल ऑर्डर बनने नहीं देते थे। चलो ऐसे ही लगे रहो, 1-2 चेंजेस कर लो। वो तो मिनते तरले करके यूनुस खान को खिलाया हमने। आपको नो द स्टोरी, मैं वो क्या स्टोरी नहीं छोटी हो सी। गया। नहीं, आप जिक्र भी कर दिया आपने, देखने वाले कर। यूनुस इज नॉट अ वन डे प्लेयर, ऑब्वियसली ही वाजंट अ वन डे प्लेयर, सॉरी। तो यूनुस को तो हमने लड़के खिलाया ताकि बने प्लेयर, because he's a great guy and he's turned out to be the greatest batsman of all time. True. So we had to make sure, and इसमें यूनुस ने बड़ी मदद की और इंजमाम ने बड़ी मदद की ताकि यूनुस प्लेयर बन सके। वो बना, फिर he proved himself ना यार। 10,000 runs कोई आम बात नहीं। And one of the highest run getter for Pakistan, and not just that, यूनुस भाई के हवाले से तब भी बहुत बात होती है जो शोएब भाई बात कर रहे हैं। It just caught up in my memory as well, and he always used to answer back with his bat till the time he had chances. मैं जरा quickly, very sorry, मैं आपको वापस वहाँ लेकर जा रहा हूँ इसको कंप्लीट करने के लिए
एक बात रह गई ज़हन में, वो ये है कि अगर फर्ज करें कि 14 इनिंग्स में बाबर आजम ने रन नहीं किए थे, 15वीं इनिंग में भी उन्होंने नहीं किए, तो 15वीं इनिंग वो मौका नहीं बनना चाहिए था। जो आपकी बात है मैं उसको सेकंड करता हूँ कि यार ये शायद तरीका नहीं था, आपको इस सीरीज से पहले ही पता होना चाहिए था। लेकिन जब आपने मिडिल ऑर्डर को बहुत और इस्तकामत देने की कोशिश की तो उसके लिए एक ही चीज़ डिफरेंट नज़र आती है, चेंजिंग दी सिलेक्शन कमेटी। जब तक वो चेंज नहीं हुई थी मिडिल ऑर्डर में, ये लड़का नहीं था। कितने अरसे से आपने, जितने भी हमारे गेस्ट यहाँ पे स्टूडियो में आते रहे, किसी ने बात नहीं की, सबने कहा कि कामरान गुलाम को खेलना चाहिए, किस नंबर पे ये भी कोई नहीं बताता था। फाइनली दिस वाज द डे दैट इट हैपेंड। Look, Azhar Ali has no say. I don't think in the playing days बेचारे की कोई say नहीं होती थी अब क्या होगी। लेकिन शफीक दूसरा वो बाहर है, यूएस में लीग खेल रहे हैं, जहाँ पे भी है, it doesn't matter, it's just Aqib's call, and it's a good call, Right. it is, it's a very good call. It's a good that's call. it. I mean, like, you need people like him, so it's a very good call. I'm just against The way that against they've the done it. process. I'm just totally against the process. That's it. And I second it's that. yeah, I agree. exactly. It's a great call. End of the day, ये डिसीजन वही ले सकता है और यही आपको चाहिए। मेरा ख्याल है कि जहाँ पे कमरान गुलाम की खुशी है वहाँ शायद बाबर के जाने का अफसोस भी है, एंड इट्स अनमैचेबल, he's done phenomenal job for Pakistan and Pakistan cricket. But now let's move on towards how Pakistan kept on losing on their wickets on the first day, ladies and gentlemen. We've lost 5 wickets. अब ये छह दिनों के बाद मैं पहला इस शोएब बशीर का कमाल नजर आया, अच्छा he दूसरा actually got किया that था। wicket. हाँ. दूसरा अच्छा किया था, बिल्कुल। deceived him in the air। और खान साहब थोड़ा सा मेरा ख्याल जल्दी कर गए, तो अगर कामरान अगर रह जाता ना यहाँ पे, थोड़े थक गए थे बहुत, पूरा दिन बैटिंग किया, नहीं था, पूरा दिन। नहीं ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। नहीं, he didn't look tired, Shahzad. Yeah. He looked But he in looked form. disappointed हाँ. कि ये looked I mean, disappointed, after यार the मैं wicket बॉल he did- कैसे मिस कर गया। हाँ. नहीं वो रीड नहीं कर पाया, और डिसअपॉइंटमेंट ये थी। बॉस जो निकला है ना, Yes. निकला ठीक था, लेकिन he did not know that ये इसका दूसरा भी अच्छा है। 224 गेंदें फेस की हैं, रन बनाए, भागे, बीच में he looked as if he's getting tired now. जब 97 पे खड़े थे, it looked as if ब्रुक ने कितने पे किया था? 300। सॉरी, ब्रुक ने कितने पे? 300। ब्रुक ने 2 दिनों में। हाँ फिर हाँ तो फिर यही तो बात बता फिर रहा हूँ, उन्होंने 150 मैं ओवरों तू में, क्या बात कर रहा है और मैं क्या कह रहा हूँ, वो एक दिन खेला, वो 2 दिन खेला है। वो 2 दिन खेले हैं, बिल्कुल खेले। तो फिर वो पिछले मैच में आप कह रहे थे वो बहुत अच्छा था, बड़ा फिट है जी। लेकिन आप क्यों कह रहे हैं? मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ दैट ही लुक्ड कि यार वो रन बनाकर थक रहे वैसे हैं। तूने एक प्रोग्राम में एक बात कर, दूसरी कर देता है। दूसरा करेंगे तो उसमें दूसरी बात होगी ना। ब्रुक कह रहा है कि यार बड़ा फिट है, देखो सर वो थका नहीं है, अभी कह रहे हैं एक दिन में थक गए। His forearm, his stance early on when he got started was wonderful. अच्छा 224 गेंदें उन्होंने फेस की हैं, भाग के दूसरी तरफ के रन्स भी बनाए हैं, 5वीं विकेट तक हर विकेट के साथ पार्टनरशिप की है। It took a lot out of him today. जी रोनी कॉलमैन साहब, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन he wasn't looking tired. Yeah, he just looked could not disappointed. understand that दूसरा, that was his disappointment was. Okay. He was really disappointed कि यार मैं इसको रीड कर लेता Yes. तो मैं इसको क्योंकि उसने धोया बड़ा उसको जी। हाँ. कि ये मैं कैसे मिस कर गया, ये डिसअपॉइंटमेंट थी। मेरे ख्याल आप क्रिकेट ज्यादा लंबी खेली नहीं, इसलिए समझ नहीं आया। सर हम 2 डिफरेंट बातें कर रहे हैं, आप विकेट की बात कर रहे हैं, मैं टायर्ड होने की बात कर रहा हूँ। वो पूरा दिन tired नहीं खेलने के था, बाद। हम यही अच्छा कह मैं रहे आगे बढ़ता हूँ, मैं इसे आगे बढ़ता हूँ, कोई मसला नहीं, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, तुझे बड्डे हो, असली मान लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अब आप ये देखें पाकिस्तान को कल के दिन में कितना स्कोर बनाना चाहिए इस पिच के ऊपर, और 150 मजीद आइडियली 150, और अगर पाकिस्तान ने मैसअप ने किया तो 50 रन के अंदर ही आउट हो सकता है। ठीक है। तो रिजवान को समझ कख नहीं आ रही उसने करना क्या है। ठीक है, सलमान आगा को ये शायद वो मुल्तान नजर आ रहा है, ये फर्क मुल्तान है जी। यहाँ पे हिटें नहीं लगनी इतनी सारी से। सो पाकिस्तान इफ एड्स अराउंड 100 रन एक्स्ट्रा देन मैच इज ऑन। आई सी अ स्मॉल ओपनिंग फॉर पाकिस्तान टू विन दिस टेस्ट मैच। इफ दे स्कोर, इफ दे गो ऑन टू स्कोर अबाउट 100 रन टुडे टुमारो, तो देन पाकिस्तान, आई कुड सी पाकिस्तान विनिंग। अगर समहाउ पाकिस्तान स्कोर्स अराउंड 400 रन, इंग्लैंड तो मर जाएगा। ठीक है। एनीथिंग अबव 300 इंग्लैंड इज डाउन एंड आउट, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। और इंग्लैंड को अगर पाकिस्तान ने अगर ये मौका न दिया, पाकिस्तान अगर इंग्लैंड को ये मौका नहीं देता ना, 350 प्लस कर जाता है, जो बड़ा मुश्किल टारगेट लगता है मुझे इस वक्त। आई मीन इम्पॉसिबल लगता है 350 करना, फिर थोड़ा सा प्लस कर देना, तो पाकिस्तान कैन बी इजीली विनिंग दिस सीरीज एज वेल। तो क्या हम फिर यही विकेट देखेंगे पिंडी में भी? नहीं, विकेट बनाएंगे नहीं, हम रड़ा छोड़ देंगे। जब ऐसा ही है उस पे खेल लो। अभी आप कह रहे थे अनफेयर है यार ये, नहीं तो इस तरह की सीरीज विकेट जीतनी है, तैयार क्या करना। करूं? तो फिर अब क्या सीरीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट? मैं शहजाद खान बन के, मुझे कहते हैं क्या शहजाद खान। मैं एक बात कर, दूसरी बात
भाई देखो ना, अगर एक सीरीज में जानी है तो विकेट बनाने की जरूरत ही आती, वैसे ये विकेट बनाने की जरूरत नहीं थी, बस ऐसे खुला ही छोड़ दें। सो पिंडी में हमें एक डीमेरिट पॉइंट पहले मिल चुका है। एग्जैक्टली, सो आई थिंक आई कैन सी स्मॉल लिटिल ओपनिंग फॉर पाकिस्तान विनिंग दिस टेस्ट मैच, except if Pakistan bats well tomorrow, adds around 100 runs, and then get England out under 300, and taking around leads of 70-80 runs, and then score around 200 runs, and then ये मुझे टेस्ट मैच 4 दिन से ज्यादा होता नजर नहीं आ रहा। Considering we've only got Rizwan and Salman on the crease, और इसलिए तो मैं कह रहा हूँ रिजवान कल जिस तरह से आए वो शुरू में बहुत ही आउट ऑफ टच लग रहे थे। इनफैक्ट कामरान गेव हिम दैट कॉन्फिडेंस। कामरान जिस तरह अपनी उसी फ्लेयर के साथ खेल रहे थे, वहाँ रिजवान टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू गेट सेटल्ड ऑन द क्रीज, बट अभी भी उस तरह विकेट सेटल होने नहीं देगी आपको, आपने बस चला ही जाना है। जितने स्कोरिंग शॉट्स आप खेल लें, जितने रन आप बना ले, उतने ही आपके लिए बेहतर। सेटलिंग डाउन वाला यहाँ कोई काम नहीं। बिग स्टेटमेंट। You'll be always fidgety on this wicket. I think that's what he it is a fidgety player. तो आज की वीडियो आपने देखी, वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो आज की डिटेल वीडियो आपने देखी कि क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है पाकिस्तान की क्रिकेट पर, जिस तरह से चंद नामवर प्लेयर्स जिनमें बाबर आजम भी शामिल है तो उनको टीम से फ़िलहाल के लिए बाहर कर दिया गया है। तो इस तरह की चीज़ होनी चाहिए या नहीं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि पब्लिक डिमांड या पब्लिक की राय सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में इस बात से हमें ज़रूर आगाह करें कि इस बारे में आपका क्या ख्याल है। तो मेरे ख्याल में तो इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला इस सिचुएशन में, जब टीम की हालत पहले से ही अबतर है, लेकिन इसके बाद अब टीम में ग्रुपिंग के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ गए हैं, क्योंकि पहले तो कुछ चीज़ें शायद ढकी छुपी थी लेकिन अब क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं।